where she has been murdered. Yeah. The FIR is registered at 11:45 in the night, Mr. Sibal. Yeah. And who was expected to register? Yeah. Nobody in the hospital registers the FIR. No. The father registers the. What was the principal or the vice principal? What were the authorities of the hospital doing? That's the first aspect. Yes. What was the principal doing? Why did he not? One, why was this kind of inaction on the part? First, an attempt to pass this off as a suicide instead of a murder. I'm sorry, Mother, that's not correct. Not recording, not registering an FIR till late in the evening. Third, the body itself is handed over to the parents sometime in the evening for cremation. Fourth, and that's a matter of very serious concern. On the next day, the doctors, because they were all doctors working with her, the doctors are on protest. A group of persons, a mob assembles at the hospital. The hospital is invaded and the critical facilities are damaged in the morning or whenever the mob enters. What was the police doing? It appears that the crime was detected in the early hours of the morning. Yes. Yes. No, in the After the crime was detected in the early hours of the morning, the principal of the hospital tries to pass this off as a suicide. Not true, not true, not Her true. parents are not allowed to see the body. The parents are not allowed to see the body. It's not that every time that there is a rape or murder that the conscience of the nation is awakened. We have to do something right here and now to ensure. नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता मामले में, कलकत्ता का जो दुर्दांत मर्डर, रेप, ट्रेनी डॉक्टर वाला जो कांड आरजी कार हॉस्पिटल में हुआ, जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया, छलनी कर दिया, पूरे देश जिसके खिलाफ आक्रोश में है, पूरे देश में मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, नर्सेज हड़ताल पे हैं, तो उसी मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज स्यू मोटो यानी स्वतः संज्ञान के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा, इन तीनों की बेंच ने आज उसकी सुनवाई रखी थी, जिसकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए। सबसे अहम फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो ये है कि एक नेशनल टास्क फोर्स का उन्होंने गठन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें 9 डॉक्टर हैं। इस पूरी टास्क फोर्स का काम है कि देश के अस्पतालों में, देश के नर्सिंग होम्स में मेडिकल प्रोफेशनल्स की सिक्योरिटी, एक पूरा प्रोटोकॉल डेवलप करे कि जिससे इस तरह की घटनाएं जो आए दिन हम पढ़ते हैं, कहीं मरीज के रिश्तेदार जिनका मरीज के साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है या ठीक उनको कोई गुस्सा होता है डॉक्टर से, तो वो आके तोड़फोड़ करते हैं, हिंसा करते हैं। इसमें जो संस्थागत सिस्टमेटिक फेलियर है, सिस्टमेटिक जो लूप होल्स थे, जो संस्था की इंस्टीट्यूशनल कमी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज एड्रेस किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसी के साथ इस बेंच ने पूरे देश के उस गुस्से को भी प्रतिबिंबित किया, रिफ्लेक्ट किया, वो सारे सवाल पूछे जो देश में हर वो आक्रोशित आदमी पूछ रहा है, पश्चिम बंगाल से, उसकी सरकार से, उसकी पुलिस से, कि ऐसा क्यों हुआ। Where a doctor has been murdered, where she has been murdered. Yeah. The FIR is registered at 11:45 in the night, Mr. Sibal. Yeah. And who was expected to register? Yeah. Nobody in the hospital registers the FIR. No. The father registers the. What was the principal or the vice principal? What were the authorities of the hospital doing? They wanted a board, we constituted a board. They wanted a magistrate, we got the You magistrate. don't need They that realized time that for murder has registration been of the FIR. principal of You don't need a medical board Yeah, for they are registration of taking FIR. That's the first aspect. Yes. What was the principal doing? Why did he not? One, why was this kind of inaction on the part? First, an attempt to pass this off as a suicide instead of a murder. I'm sorry, Mother, that's not correct. Not recording, not registering an FIR till late in the evening. Third, the body itself is handed over to the parents sometime in the evening for cremation. Fourth, and that's a matter of very serious concern. On the next day, the doctors, because they were all doctors working with her, the doctors are on protest. A group of persons, a mob assembles at the hospital. The hospital is invaded and the critical facilities are damaged in the morning or whenever the mob enters. What was the police doing? It appears that the
crime was detected in the early hours of the morning. Yes. Yes. No, in the evening. After the crime was detected in the early hours of the morning, the principal of the hospital tries to pass this off as a suicide. Not true, not true, not Her true. parents are not allowed to see the body. The parents are not allowed to see the body for almost. No, Malad, this is, I'm sorry. Anyway, Malad, this is Not the that impression. our investigation also We'll have to place the facts before your lordships. We have investigated that. It's not that every time that there is a rape or murder that the conscience of the nation is awakened. We have to do something right here and now to ensure that these conditions of safety are maintained in terms of protocols which will not just be on paper, but protocols which will be enforced across India. Now, insofar as what happened in Kolkata is concerned, this is Not correct. what time was the FIR registered? Malad, in fact, we did what is called, what we call a UD case, Malad. Unnatural death case registered, Yes, unnatural death case. registered But immediately. that's right. That's an FIR, Malad. That's an FIR. Not the body is discovered. The FIR registered formally in the police. Malad's inquest was done and then FIR registered immediately and the What investigation time- started. What time It should have been done. the FIR registered? 12, Malad. 12:30. Does the FIR say that this is a case of a murder? No. Yes, yes. Let me first of all state, Surely, Mr. Sibal, What? the police, Malad, a very serious offense has taken place. The crime scene is within the precincts of the hospital. Now, that is the first thing that the police have to do, namely to protect the crime scene. What are they doing? ऐसा क्यों हुआ कि जब उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो ये दरिंदगी हुई, जो घटना हुई, तो प्रशासन ने, जो लोग जिम्मेदार थे, जो लोग उसके अपने थे, अपने कलीग थे, उन्होंने उस पर लिपापोती करने की, पर्दा डालने की कोशिश क्यों की? क्यों उस मर्डर को, उस रेप को, उस घटना को छिपाकर उसे आत्महत्या बताने की कोशिश की गई? ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो जो कई घंटे तक उसकी बॉडी जो है वो उसके परिजनों को नहीं दी गई? या उसके बाद 14 अगस्त की रात को कहाँ से वो 7,000 लोगों का, 7,000 या जो भी लोगों का हुजूम था, जो मॉब थी जिसने वहाँ तोड़फोड़ की, वहाँ की दूसरी डॉक्टर्स को धमकियां दी? that's, Allow vandals to enter the hospital. It's impossible that That's, 7,000 people first can of all, gather without of all- the consent. Please, one second. allow me. Lord, 7,000 people can never gather without knowledge or consent of the. This is not an adversarial litigation. It's not. Therefore, let us not be in denial mode. One girl has lost life One second. by not only, my lord, a sexual pervert, he is an animal. Principal, after the principal resigns from this medical college, He sent to another he's, hospital. he's appointed as a principal of another college. Immediately. He doesn't resign. But anyway, be that, Malad, let me His conduct, at the least, his conduct is under scrutiny, and he's appointed as a principal somewhere else. Lord, This is all, we have a note Lord, on yeah. all this Lord, misinformation. it's not contradict each other, there is a high court What order. is the reality? Just show it to you. Let them file report, not. But just show it to you. Tomorrow. My lord. Couple of things which we would like Would to be do. there. Well, let's make it very clear. Yeah. We would want the investigation has been handed over to the CBI. Bureau of Investigation. Yes, done, yes, We want CBI to file a status report before this court on Thursday. correct. We will take up the case on Thursday. We want CBI to apprise us on the status of the investigation. Correct. The investigation obviously must be at a very sensitive stage so that it's something which will be submitted to the court. So the, for court's For the principal, consumption, not, it's my lord, a making case dive. it public. It's Yes. really an investigation update Yes, status yes. report which will be given to us on Thursday. और अभी तो रोज छन छन के खबरें आ रही हैं, कैसे वहाँ के जो प्रिंसिपल घोष, संदीप घोष, जिनको हटा दिया गया था या जो छुट्टी पे चले गए थे, फिर उनको तत्काल दूसरे अस्पताल का डायरेक्टर बना दिया गया। उनकी ताकत को लेकर, उनके राजनीतिक रसूख को लेकर घोष के तमाम तरह की बातें उठ रही हैं। तो मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, अफवाहें, तमाम तरह की बातें उसमें निकली कि बलात्कारी एक ही है कि कई है, कि क्या हुआ है। जिस बेटी के साथ जो हुआ, उसका परिवार जिस सदमे में है, वो तो एक तरफ है, और मामले ने जो राजनीतिक तूल ले लिया है। एक तरफ ममता बनर्जी के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, उनकी सरकार के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, उनके पुलिस के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। उनमें से कुछ सवाल वाजिब भी लगते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछे। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की आज सुमुटो सुनवाई की वजह से तमाम पक्ष थे, तमाम जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नर्सेस की एसोसिएशन, जूनियर रेजिडेंट, तमाम स्टेक होल्डर्स
इस पूरे प्रोफेशन के, देश भर के, ना केवल कलकत्ता के या वेस्ट बंगाल के बल्कि देश भर के, और कलकत्ता सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे कपिल सिब्बल, सीनियर मोस्ट लॉयर हैं, और अलग अलग स्टेक होल्डर्स को बहुत सारे वकील, सीनियर एडवोकेट, वो सब सुप्रीम कोर्ट में जमा थे। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह और भी तमाम वकीलों का हुजूम था। तो उन सबके अपने अपने एजेंडा, सबके अपनी अपनी बातें सारी, इस पूरी घटना से हर व्यक्ति चिंतित है। हम किसी की नीयत पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन ये बात भी तय है कि सरकारें, राजनीतिक दल सब इस मामले में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, सब इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात सब कर रहे हैं, लेकिन सब दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप, हमने सही किया, उसने गलत किया। तो जो असली मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट ने, उस बेंच ने कोशिश की उस मुद्दे को छूने की, उस मुद्दे को टच करने की। उन्होंने कहा कि सिर्फ कागजों में ना रह जाए, जो सुरक्षा की बात है, जमीन पर, ऑन ग्राउंड चेक, ग्राउंड रियलिटी, उसकी उन्होंने बात की कि जमीन पर कुछ करते हुए दिखना चाहिए। और जो बात हमने, और कोई भी समझदार आदमी इतनी जो आकर्षित होगा, जो गुस्से में होगा, हमने भी अपनी वीडियो में कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज वही बात अपने शब्दों में, अपने अंदाज में कही कि मूल बात यह कि क्या देश एक अगली घटना की, अगले रेप की, अगले बलात्कार की, अगली हिंसा की इंतजार करेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आज और अभी कुछ ऐसा कदम उठाना होगा जिससे देश में एक माहौल बने, जिससे देश में ग्राउंड लेवल पर कुछ बदलाव हो। Of equality. And therefore, we are entertaining this, and I'll very shortly share the way we want to proceed with this to ensure that ultimately it's not that every time that there is a rape or murder that the conscience of the nation is awakened. We have to do something right here and now to ensure that these conditions of safety are maintained in terms of protocols which will not just be on paper, but protocols which will be enforced across India. उन्होंने विस्तार से, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बात की अपने ऑर्डर में, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं पहले हम वो आपको समझाते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं। सीबीआई जांच की निगरानी का काम सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया। ये बेंच, उसने सीबीआई से कहा है कि अपनी स्टेटस रिपोर्ट 22 तारीख को दे। राज्य सरकार से भी उसने स्टेटस रिपोर्ट मांगी। वो इस पूरे मामले की, मतलब कलकत्ता वाले मामले की पूरी निगरानी करेगी, देखेगी कि मामले में कोई अन्याय ना हो। तो जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने, इस बेंच ने आज पूछे, वो वही है जो सोशल मीडिया में, अखबारों में इधर उधर घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, लेकिन एक भ्रम की, एक कन्फ्यूजन की, और उसके कई कारण हैं। क्योंकि एक तरफ राजनीतिक दल, केंद्र इस घटना का लाभ लेकर अपने राजनीतिक स्कोर को सेटल करना चाहता है। जो उस पीड़िता के साथ हुआ वो तो वाकई गलत हुआ, वो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, इस पर किसको ऐतराज हो सकता है। लेकिन उसी के साथ राजनीतिक दल इस घटना का हवाला लेके, इस घटना की आड़ लेके ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने जरूर ऐसी गलतियां की, कोई ना कोई तो पेच है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों उस पर लिपापोती की गई, क्यों जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके लेकर के कई वर्जन सामने आ रहे हैं। कोई कहता है इतना है, कोई कहता है उतना है, कोई कहता है ऐसा नहीं हुआ, कोई कहता है वैसा नहीं हुआ। सब मतलब इतने कंट्रडिक्शन, इतनी वो। और दूसरी बात, जो बड़ी बात थी कि पीड़िता की पहचान, उसकी फोटोग्राफ, उसका सही नाम, वो वीडियो, उसकी प्राइवेसी का कोई नहीं है। उसका परिवार के लिए तो रोज, हर दिन, हर सेकंड, जिस वक्त भी सोशल मीडिया पे दूसरे उस पर वो घटना, उसका उल्लेख, उसकी ग्राफिक डिटेल्स, तो उस यातना का वो लगातार रिपीटेशन जो हो रहा है। कितने लोगों को साइकोलॉजिकल, उसको सुन के हमारे तो रोम रोम कांप गया, उसको सुन के, उसकी कल्पना करके, उस घटना की, उस दर्द की, उस यातना की जिससे वो डॉक्टर गुजरी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सवाल भी उठाया कि कैसे वो लीक हुई, उसमें कौन लोग शामिल हैं, कैसे ये कर सकते हैं, कैसे इतने इनसेंसिटिव हो सकते हैं वो तमाम लोग। हालांकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की, उसमें हमें ये बात अभी कहनी होगी कि इसमें मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों को भी सोचना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हम टीआरपी और व्यूज और उसकी होड़ में इतने बेगैरत हो जाएं। हम जानवर की बात कर रहे हैं, हम दर्द की बात कर रहे हैं, लेकिन संवेदना के स्तर पे हमें भी देखना चाहिए कि क्या हम पढ़े लिखे, सुशिक्षित, सुसभ्य, जिम्मेदार लोगों की तरफ बिहेवियर करेंगे। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमें उसके नाम नहीं उजागर करना है, उसकी पहचान उजागर नहीं करनी है, और बचना चाहिए उस तरह की डिटेल देने से कि जो सनसनी फैलाएं, जिससे
उस परिवार की, उसकी जो प्राइवेसी है उसका क्या होगा? तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी रखी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे घटनाक्रम के अंदर वो सवाल पूछे, बहुत मुश्किल सवाल पूछे, वो सवाल पूछे जिसका जवाब वहाँ की पुलिस को, वहाँ के स्टेट को, वहाँ के प्रशासन को देना होगा कि क्यों चूक हुई, कैसे वहाँ इतने हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, और कैसे उस पुलिस पर भरोसा किया जाए कि जो पुलिसकर्मी वहाँ थे जो भाग गए, जो छिप गए। और अभी आज भी कई ईमेल का हवाला दिया गया जो वहाँ के डॉक्टर्स ने, जिस दिन हमला हुआ 14 अगस्त की रात को जो तोड़ फोड़ हुई, वेंडलिज्म हुआ पूरा, तो वहाँ पर सबूत मिटाने की कोशिश के तौर पे इसे कोई देख रहे हैं। फिर उसके बचाव में कहा जा रहा था कि नहीं वहाँ टॉयलेट्स बनने थे। कितना मतलब छिछोरा, कितना उथला किस्म का, कितना भोतरा किस्म का वो बचाव दिखाई देता है। प्रथम दृष्टया नजर आता है कि ये वाइट वॉशिंग की तो इससे ये बात पैदा होती है, ये शक पैदा होता है कि कौन लोग हैं जिनकी रुचि, जिनका इंटरेस्ट, उनके क्या ऐसे इंटरेस्ट है कि वो एक घटना हुई है, एक ऐसी घटना हुई है जिसमें एक वैशी, जिसमें एक यौन विकृत व्यक्ति, परवर्ट व्यक्ति, उसने उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो किया, जिसको सोचकर भी किसी का भी कलेजा मुंह पे आ जाएगा, उस पर ढकने की, उसको न्याय ना मिले, उसको आत्महत्या बता दिया जाए, उसको ढक दिया जाए, इसमें किसका स्वार्थ हो सकता है और क्यों और क्या हो सकता है? तो वो जो 52 तरह की थ्योरीज चल रही हैं, जो हाइपोथेसिस तैर रही हैं, उनको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे सवाल पूछे। मूल रूप से उसमें प्रशासन की नाकामी, ऐसे किसी मामले में निपटने की जो प्रोटोकॉल है स्थापित कि एफआईआर में देरी क्यों हुई, एफआईआर में गलत वो क्यों किया गया, ऑटोप्सी से लेके पूरा प्रोसेस जो है, जो एक प्रोटोकॉल होता है क्रिमिनल किसी भी उसका पालन क्यों नहीं हुआ, सुरक्षा के जो मापदंड है, सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल हैं, उसमें कैसे चूक हुई, और अभी जो डॉक्टर्स वहाँ हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, उनकी सुरक्षा का सरकार के पास क्या इंतजाम है। तो फिलहाल वहाँ सुरक्षा का मामला उस पर्टिकुलर अस्पताल पे वो सीआरपीएफ को दे दिया गया है। तो अब सीआरपीएफ उस अस्पताल की सुरक्षा करेगी। ये आज के सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई या फैसला जो कहिए उसमें हुआ। जो ऑर्डर मैंने आपको बताया कि जिसमें उन्होंने पूरा टास्क फोर्स की बात की, जिसमें एक नेशनल प्रोटोकॉल बनाने की बात की पूरे देश में। कुछ राज्य सरकारों ने, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जहाँ पर इस तरह के एक्ट है, जहाँ पर प्रोविजंस हैं, जहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है कि यदि आप ड्यूटी पर मेडिकल प्रोफेशनल के साथ, नर्स के साथ, डॉक्टर के साथ, रेजिडेंट डॉक्टर के साथ या दूसरे पैरामेडिकल जो हैं उनके साथ अगर आप हिंसा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उनके साथ कुछ गलत करते हैं, तो उसमें 3 साल तक की सजा भी है। लेकिन वैसा पूरे देश में नहीं है। तो उसको लेकर के एक पूरी समग्र, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो सारे पहलुओं को समेटे, एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसमें उनकी जो वनरेबिलिटी है वायलेंस की, क्योंकि ये उन्होंने अपनी बात में कही है सुप्रीम कोर्ट ने, एक लंबा उन्होंने वक्तव्य दिया जो ऑर्डर था उनका, जिसमें बेंच ने कहा कि सारे पहलुओं देखेगी, क्योंकि जो ये पेशा है इसमें किसी की भी अनइंटरप्टेड एक्सेस होती है। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, मेडिकल जो सुविधाएं हैं उनको पाने के लिए लोग चले जाते हैं, तो लोग कई बार हथियार ले जाते हैं, कई बार मरीज के रिश्तेदार इतना गुस्सा हो जाते हैं। तो सारे पहलुओं की उन्होंने बात की है कि इसमें ड्यूटी ओवर्स को लेकर के है कि 36 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। बड़ी संख्या में इसमें महिलाएं इसमें शामिल हैं इस पूरे पेशे में, जिनकी सुरक्षा की, पुरुषों की भी, लेकिन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, क्या उसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो, ये इस टास्क फोर्स का, और उसकी मॉनिटरिंग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ली है। सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट करेगा जैसा इन्होंने कहा है। आज चंद्रचूड़ साहब ने केंद्र सरकार को भी अपना एफिडेविट मांगा है, उनसे भी मांगा है कि वो पूरे देश में क्या इंतजाम है, केंद्र सरकार के पास के अस्पतालों की सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, जो सेफ्टी मेजर्स क्या आप करते हैं, क्या जो एंट्री गेट है उस पर चेकिंग है कि लोग कहीं हथियार तो लेके नहीं जा रहे हैं, ये सब, और किस तरह की सुविधाएं हैं, जो रेस्ट रूम हैं, टॉयलेट्स हैं, उनको ड्यूटी के बाद घर छोड़ने के लिए क्या व्यवस्था है, किस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, और उनको जो पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम के बारे में उसको रिजॉल्व करने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस चौकी है कि नहीं, और जो ग्रेवियांसेस हैं स्टाफ की जो होती हैं ड्यूटी से रिलेटेड, छुट्टी से रिलेटेड, कलीग के बिहेवियर से रिलेटेड,
या और जो उनको दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए क्या इंटरनल कोई कमेटी बनी हुई है, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसका उन्होंने 1 महीने के अंदर एफिडेविट मांगा है केंद्र सरकार से कि ये सारी जानकारी वो सुप्रीम कोर्ट को मुहैया करे। उसके अलावा जो नेशनल टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस की है, जिसके नाम हम अभी आगे आप बताएंगे आपको कि कौन कौन उसके सदस्य बने हैं, उससे 3 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने कहा है, इंटरिम रिपोर्ट, और जो फाइनल उनकी है वो 2 महीने के अंदर उनको जमा करनी है कोर्ट के सामने। 2 महीने के अंदर उनको बताना है कि क्या पूरा स्ट्रक्चर होगा, क्या खाका होगा, किस तरीके से ये देश इंश्योर कर सकता है कि ऐसी घटनाएं ना हो। और बाकी इस टास्क फोर्स में जो मेंबर होंगे, तो उसमें जो डॉक्टर्स हैं जिनकी बात करें, उसमें आर के सरियन ये सर्जन हैं, वाइस एडमिरल वो हैं, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी मेडिकल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डॉक्टर एम श्रीनिवास हैं जो डायरेक्टर हैं एम्स के दिल्ली के, डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी डायरेक्टर हैं एम्स जोधपुर के, डॉक्टर सौवित्र रामत ये गंगाराम हॉस्पिटल के मैनेजिंग मेंबर हैं, प्रोफेसर अनीता सक्सेना ये कार्डियोलॉजी की हेड हैं एम्स दिल्ली की, प्रोफेसर पल्लवी सावरे ये डीन है ग्रांट कॉलेज मुंबई की, और पद्मा श्रीवास्तव ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स की डॉक्टर हैं। इनको इसमें शामिल किया गया है। और जैसा मैंने बताया कि पूरा विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने, इस बेंच ने तफसील से सुना सबको, और फिर अब इसकी जो अगली सुनवाई है वो थर्सडे को है, और उसके बाद फिर 23 अगस्त को है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि हम पहले इस पर स्टेटस रिपोर्ट लेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, और फिर सबकी जो भी हमें ईमेल से चीज़ें मिली हैं उसको भी हम देखेंगे। जैसे दूसरी डॉक्टर्स को जो हॉस्टल में थी वहाँ पर उनको, जूनियर डॉक्टर्स को नाम से उनको थ्रेट की गई, तो उनकी सुरक्षा की बात उसमें की है। प्लस उन्होंने एक चेतावनी भी दी है और एक एश्योरेंस मांगा है उन्होंने, जो उन्होंने कपिल सिब्बल जी से कहा कि वेस्ट बंगाल सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो लोग भी जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो चाहे डॉक्टर हों, आरजी कार के हों या किसी और अस्पताल के डॉक्टर हों, सोशल मीडिया के लोग हों, जर्नलिस्ट हों, एक्टिविस्ट हों, जो भी कर रहे हैं, उन पर स्टेट की ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो, स्टेट उन पर बेजा नाजायज दबाव, क्योंकि इस तरह की भी खबरें आई थी कि किसी ने कोई कमेंट कर दिया ट्विटर पे, किसी ने कुछ प्रोटेस्ट कर दिया तो पुलिस पहुंच गई उसके घर पे, उसके ऊपर दबाव बनाया गया। ये भी खबरें वहाँ से सामने आ रही थी। और जैसा कि एक पूरा नैरेटिव बनाया कि वेस्ट बंगाल सरकार को भी अबदस्त यानी कि हटाया जा सकता है। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये मीडिया के हलकों में बातें तैर रही हैं कि केंद्र सरकार इसको लॉ एंड ऑर्डर के ब्रेकडाउन के तौर पे देख रही है। जो उस दिन घटना हुई 14 अगस्त में, 14 अगस्त की रात को कि इतने सारे संख्या में मॉब आ गई और उसने तोड़फोड़ की वहाँ पे, और जिसको ये कहा जा रहा है कि ये फेलियर था क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, पुलिस, सीआईडी वो क्या कर रही थी। इतनी बड़ा जो मॉब है, इतनी बड़ी भीड़ जो डंडे, हॉकी और दूसरी चीज़ लेकर आई थी, वो अचानक नहीं हो सकता। उसको तो 1 किलोमीटर दूर रोक दिया जाना चाहिए। जैसा कलकत्ता हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं टी शिवगन्नम, वो भी कह चुके हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट भी लगातार उस पर अपना गुस्सा जाहिर कर चुका है उस पूरे बात को, और अभी भी वो कायम है। तो उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया, संतुलित तरीके से दोहराया अपने आक्रोश को। उनके जो सवाल थे कि वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं लाइव टेलीकास्ट में, हमारे उसमें भी डला हुआ है कि किस तरीके से वो नजर आ रहा था आक्रोश, और वो पूरे उस राष्ट्रीय आक्रोश की अभिव्यक्ति, उसका प्रतिबिंब था जो सुप्रीम कोर्ट में आज दिखाई दिया। जुडिशरी ने आज के स्यू मोटो जो हियरिंग थी, उसमें जुडिशरी ने अपनी तरफ से अपनी चिंता, अपने गुस्से, अपने ऑब्जर्वेशन और अपने सवाल वही सामने रखे। स्टेट गवर्नमेंट को आज कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि वो सही तथ्य रखकर सही बात बता पाती है। अब वो बात तो, लेकिन हाँ ये है कि संतोष की बात ये है कि सारे वो पहलू, सारी वो चिंताएं, सारे वो शक, सारे वो सवाल वो सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किए, और अब चूंकि वो रिकॉर्ड पे आ गए हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, तो वेस्ट बंगाल सरकार को अब जो स्टेटस रिपोर्ट वो देंगे, उसके बाद फिर उनकी उन फैक्ट्स की वेरिफिकेशन हो पाएगी। अब ये आसान नहीं है कि उस पर लिपापोती कर दी जाए। कपिल सिब्बल जो कि ममता बनर्जी को, पश्चिम बंगाल सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बहुत बखूबी ये बताने की कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ें फेक नैरेटिव का हिस्सा है, मिस इन्फॉर्मेशन है, अफवाहें हैं,
तथ्य और सत्य उन्होंने बताने की कोशिश की। इससे लगे वो उन्होंने पेन ड्राइव में वीडियो देने की कोशिश की, कई कागजात उन्होंने दिए, उन्होंने बताया कि ये मिथ्या, ये मिस इन्फॉर्मेशन, एक फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है और उसको पॉलिटिकसाइज किया जा रहा है, जिसको जो दूसरी साइड से सॉलिसिटर जनरल थे, क्योंकि यहाँ केस वेस्ट बंगाल वर्सेस केंद्र बन गया है। सीजीआई ने पूरे देश के आंदोलनकारी डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट की कि चूँकि अभी एक नेशनल टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दी है, सुप्रीम कोर्ट इस पे बहुत सीरियस है, तो उसके मद्देनज़र उन्होंने जो भी हड़ताल कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, दूसरे राज्यों में, देश भर में, उनसे गुजारिश की है कि वो अपनी हड़ताल वापस ले लें, काम पर आएँ, क्योंकि उसकी वजह से निर्दोष पेशेंट्स को, जिनके लिए 2-2 साल तक लोग 2-2 साल पहले से अपॉइंटमेंट लेते हैं अपनी सर्जरी को लेकर, अपने ट्रीटमेंट को लेकर, और आप जानते हैं देश के सरकारी अस्पतालों में किस तरह की स्थिति है, एम्स में जो वेटिंग लिस्ट है उसका उन्होंने जिक्र किया स्पेसिफिकली सीजीआई ने। उन्होंने रिक्वेस्ट की अर्नेस्टली कि भाई आप काम पर लौटाइए, और जैसा खबर आपको देने तक पता चला कि कुछ बड़े संगठनों ने हड़ताल वापस ले भी ली है, और उम्मीद करते हैं कि बाकी भी जो संगठन, बाकी भी जो डॉक्टर्स, नर्सेज, जूनियर डॉक्टर, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो देश भर में इस घटना के बाद से सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आंदोलन पे थे, हड़ताल पे थे, वो लौट आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हमें अपने कमेंट से बताइए कि आप इस कदम के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये के बारे में आप क्या सोचते हैं, और जो ये राजनीति इस पूरे मामले में हो रही है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है, और हमारी वीडियोस, हमारी अप्रोच आपको कैसी लगी, उसके बारे में भी हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपने कमेंट और अपने प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। नमस्कार।